Assalamu alaikum and good morning, dear students. Today is our 10th lecture for English. So, in the previous lecture, we started studying narrative essays. I told you what are narrative essays, I told you what are descriptive essays. We have discussed about all the types of essays in our second lecture, I think so, or first lecture. I told you how to write an essay, how to write a good essay, or what are the kinds of essays. So we studied the first story. Now we are going to read the second story. My unlucky day. You have to give when you're writing an essay, then you are going to give a title for that. A day when everything went wrong. मतलब कि मेरा बुरा दिन. The alarm went off, but wanting to steal a few more minutes of sleep, I turned it off and continued to sleep. It was half an hour later that I woke with a start. Good gracious. I had to be in school by 8:30 and it was already 8 a.m. by the clock. Would be late for the audition for a play. अब वो कहते हैं 8:30 तक मैंने स्कूल में पहुंचना था और क्या हुआ, अलार्म चला और मुझे नींद थी. तो अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम सुबह उठते हैं तो अलार्म दिल करता है बंद करके थोड़ी देर और सोएं, तो थोड़ी देर पता चलता है 1-2 घंटे गुजर गए. तो हाफ एन आवर गुजर चुका था, 30 मिनट्स गुजर चुके थे और 8:30 पे उसका ऑडिशन था प्ले के लिए स्कूल के अंदर. और लेकिन वो कहता है मुझे पता था मैं लेट हो गया. Wasting not a second more, I jumped out of bed and ran to the bathroom for a quick wash up. I was angry at myself for not reminding my parents to wake me up before they left for their offices. How lazy I had been. अब वो कहते हैं मुझे पछतावा भी बहुत था और मैंने 1 सेकंड भी ज़ाया ना किया और मैं बेड से जंप किया और वॉशरूम की तरफ भागा और उस दिन में यही सोच रहा था कि मैंने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं कहा रात को कि मुझे टाइम पे उठा दीजिएगा आप अपने ऑफिस जाने से पहले. लेकिन वो ऑफिस जा चुके थे तो मैं कितना लेज़ी हूँ, अपने आप को वो मतलब कि मुलामत कर रहा है. Having no time for breakfast, I hurried out of the house and ran all the way to the main road to hail a taxi. अब वो कहते हैं मैं जल्दी जल्दी भागा घर से, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और जल्दी जल्दी रोड की तरफ भागा ताकि मैं टैक्सी ले सकूं. Fortunately, there were a few around and I was soon on my way to school. कहते हैं अल्लाह की तरफ से fortunately it was a great fortune for me कि उधर टैक्सीज खड़ी थी ऑलरेडी और मुझे एक टैक्सी मिल गई और मैं स्कूल की तरफ जाना शुरू हो गया. Glancing at my watch which showed 8:15 a.m. I consoled myself that it would be alright to be late by 10 minutes or so. I leaned back to relax a little. The minute I did so, I nearly let out a scream. I had forgotten to call Lily before I left the house. She had always been counting on me to be her alarm clock, and I had promised her the night before to wake her. She would probably be late for the audition and be mad at me. अब कहते हैं मैंने अपना टाइम साथ देख रहा था तो 8:15 हो चुके थे और मैंने जैसे ही अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ऐसे टेक लगाई गाड़ी की सीट के साथ, रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा लीन बैक हुआ तो क्या हुआ कि मेरे मुंह से चीख निकल गई. और वो चीख किस लिए थी कि मैं लिली को कॉल करना भूल गया था और मैंने 1 दिन पहले उसको प्रॉमिस किया था, मैं उसका अलार्म क्लॉक हूँ कि मैं सुबह तुम्हें कॉल करके जगा दूँगा. लेकिन ये प्रॉमिस मैंने कल रात को किया था और मैं उसको कॉल करना भूल गया और वो ऑडिशन के लिए लेट हो जाएगी और मुझ पे गुस्सा करेगी. शी विल बी मैड एट मी. एज आई wallowed in these miserable thoughts, the taxi suddenly came to an abrupt stop. We were caught in a traffic jam. Peering ahead, I could see a container truck parked near the curb. I had broken down and as a result contributed to the road congestion. कहते ये अभी मैं सब कुछ सोच ही रहा था कि हमारी गाड़ी एकदम से रुकी और मुझे पता चलता है कि आगे एक ट्रैफिक जैम है और जहाँ पे हम फंस चुके हैं. Feeling totally helpless,
and trapped within. I wish such a situation had never happened to me. The whole thing was happening just when I needed to rush to school for an important event. It was ironical too, as my school was just around the corner after the traffic lights. अब क्या कहते हैं ये मैं इतना हेल्पलेस फील कर रहा था, और ये मेरे साथ ही होना था, और आज के दिन ही होना था जिस दिन मैं इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए स्कूल जा रहा हूँ, अपना एक ऑडिशन देने जा रहा हूँ। और बड़ी बात ये थी कि स्कूल जस्ट उसके कॉर्नर पर था, लाइट्स के बिल्कुल साथ। कहते आफ्टर contemplating for a while, I decided to pay the taxi driver and ran all the way to school. The distance was further than I thought. By the time I reached the school hall, I was wet with perspiration. ये आगे से मिटा हुआ है थोड़ा सा। perspiration होगा, I think so. Panting breath, ऐसे like dog that had run for many miles. अच्छा जी, आप जब सांस तेज तेज ले रहे होते हैं ना, उसको कहते हैं perspiration। तो कहते हैं उस तरह से मैं ब्रीथ कर रहा था और गीला था, पसीने में भीगा हुआ था, और इस तरह था जिस तरह कुत्ता, जिस तरह डॉग ऑल द वे दूर से भाग के आता है तो उसकी ज़ुबान बाहर आ जाती है और वो हाफ रहा होता है और तेज़ तेज़ सांस लेता है। Being half an hour late, I had to face the wrath of both the teacher and Lily. The teacher was less sympathetic compared to Lily and was about to disqualify me for the audition. It was only through my fervent persuasion that she consented to let me have a try. But alas, I ended up sharing the notes with Lily, who forgave me after my explanation, and probably more so when she witnessed my pathetic plea with the teacher. अब क्या हुआ, कहते मैं तकरीबन आधा घंटा लेट था, और वो स्कूल जितना मैंने करीब समझा था वो बहुत दूर था टैक्सी से, और टीचर और लिली दोनों खड़े थे और दोनों मुझ पे बहुत गुस्सा थे, और मैं और टीचर्स बिल्कुल भी सिंपैथेटिक नहीं थी, मतलब कि सिंपैथी उनके दिल में बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत गुस्से में थी, और वो अबाउट थी कि मुझे वो डिस्क्वालीफाई कर देती इस ऑडिशन से। लेकिन उन्होंने मुझे एक ट्राई करने का मौका दिया, और मैंने लिली से अपने नोट शेयर किए जो मेरे साथ प्ले में थी, और उसने भी मुझे माफ़ कर दिया और मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया मैंने जब उसको सारा कुछ बताया। बाय देन माई सेल्फ कॉन्फिडेंस वॉज अ लिटिल शेकन एंड नीडलेस टू से आई फेयर्ड बैडली इन द ऑडिशन। आई लेफ्ट द स्कूल विद अ हैवी हार्ट दैट डे। व्हाट एन अनलकी डे फॉर मी। अच्छा जी, कहते हैं मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस शेक कर चुका था, मतलब कि मेरे अंदर इस टाइम सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, एंड नीडलेस टू से आई फेयर्ड बैडली इन द, मतलब कि बहुत बुरा ऑडिशन गया उसका, उसको कास्ट भी ना किया गया, और बड़े हैवी हार्ट के साथ, बड़े दिल के बोझ के साथ वो स्कूल से निकला। व्हाट एन अनलकी डे फॉर मी। अब अगला अगर हम नैरेटिव ऐसे देख लें, दैट इज़ इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स। You have just one more chance to prove that you can do it. The jump of joy। कैसा उसने अच्छा टॉपिक रखा है, द जंप ऑफ जॉय, कि आपके पास लास्ट चांस है कोई काम करने का, तो आप यू हैव जस्ट वन मोर चांस टू प्रूव दैट यू कैन डू इट। द वर्ड्स ऑफ माई इंस्ट्रक्टर echoed and re-echoed in my ears as I got into the plane. Fear was a natural thing I had heard, and I had a common fear which a lot of others had. I was afraid of heights. I had been afraid of even looking down from a high building. अब क्या हुआ, कहता है मेरे पास, मैंने अपने आप को कहा यू हैव जस्ट वन मोर चांस टू प्रूव दैट यू कैन डू इट। और मेरे इंस्ट्रक्टर जो था उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, यही आवाज़ कि तुम्हारे पास लास्ट चांस है, तुम कुछ कर सकते हो। और मुझे मेरे अंदर एक फियर था जो हाइट्स का था और बिल्डिंग्स का था,
हाई बिल्डिंग से भी मैं देख के नीचे डर जाता था, और मैंने प्लेन के अंदर सवार हुआ। द फियर हैड बीन विद मी फॉर एज लॉन्ग एज आई कुड रिमेंबर. It was to overcome my crippling fear of heights that I decided to join the parachute school. I had gone through a rigorous routine to prepare myself for the big moment. Then at the signal to jump, I had shivered and trembled and started screaming in fear. The instructor had taken me by the hand and led me back into the plane. I was the only one that day who had taken off in the plane and landed, instead of jumping out in a parachute. As my companions met me at the base, they smirked. I could see that even my good friends were uncomfortable in my presence. I was a failure. अब वो क्या कहता है कि मुझे हाइट से डर था, मैंने उसको अपने जो फियर को ओवरकम करने की कोशिश की। तो कोशिश करने के लिए मैंने क्या किया, एक पैराशूट स्कूल ज्वाइन किया। मेरा एक इंस्ट्रक्टर था, जब मुझे उसने प्लेन में बैठाना चाहा तो मैं रोना शुरू हो गया, मैंने स्क्रीम किया। तो उसने मुझे बड़े आड़े हाथों लिया और मुझे ज़बरदस्ती उसके अंदर बिठा दिया। और उस दिन सिर्फ मैं अकेला प्लेन में था और मैं बैठ के जंप नहीं था करता। और उस दिन मैं अकेला प्लेन के अंदर बैठ के ऊपर गया और बग़ैर जंप किए फिर से वापस प्लेन के साथ मैं लैंड हो गया और मैंने जंप नहीं किया उसके अंदर से। तो कहते मैं बड़ा फेलियर था, बहुत बुरी तरह से हारा हुआ था। लेकिन अब होता क्या है आपने ये देखना है। देखें, आप जब भी सोचते हैं कि हम हार गए, अब कुछ भी नहीं है लाइफ में, फिर उसके बाद क्या होता है वो देखिएगा। आपका इधर से अब एक अच्छा क्लाइमेक्स शुरू होगा। Then my instructor took me aside. He explained that it was not uncommon to be afraid. The real courage was in facing and overcoming the fear. I nodded and began to engage in self-talk. In the plane, I was still doing this. I kept thinking how I was going to go home and face my parents if I do not get my wings. Then I tried to shut out the fear by imagining myself showing them my wings. The time for the jump drew near. अब क्या हुआ, इंस्ट्रक्टर ने मुझे पकड़ा। वो कहता है, उसने मुझे बुला के कहा कि ये अनकॉमन नहीं है, ये कॉमन है कि हर इंसान को किसी न किसी चीज़ का डर होता है। और सबसे बड़ा जो करेज है, सबसे दलेरी जो है चीज़ की, करेज है, उसको ओवरकम करने का आइडिया है, ड्रीम जो आप करते हो कि अगर मेरा ये फियर है तो यार मैं ये ज़रूर करूँगा, ये मैं करके अपना फियर ओवरकम। अगर मैं पानी से या स्विमिंग से डरता हूँ मैं वो करूँगा, अगर मैं जंप करने से डरता हूँ हाइट से तो मैं पैराशूट स्कूल ज्वाइन करूँगा। इस तरह की जो चीज़ आप करने से डरते हो वो करो, ताकि आप अपने चीज़ को, अपने जो फियर्स हैं उसको ओवरकम कर सको। जिस तरह आप इंग्लिश बोलते डरते हो, व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड और व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, यू आर अफ्रेड कि आप जब इंग्लिश बोलेंगे इतने लोगों के सामने क्या होगा, शायद कोई गलती निकाल देगा या कोई सोचेगा इसको इंग्लिश नहीं आती। नो वन विल थिंक लाइक दिस। रिमेंबर, आप जब इंग्लिश बोलोगे, व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, एटलीस्ट यू आर डूइंग एफर्ट। आप ट्राई तो कर रहे हो ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्राई भी नहीं करते, जिनमें आप हो भी। यू आर इन दोज पीपल जो बोल भी सकते हैं, जिनको समझ भी आती है। आपको इंग्लिश नहीं आती। अगर लेट मी आस्क यू समथिंग, आप कहते हो हमें सर इंग्लिश नहीं आती। व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश, हाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट? मतलब कि आपको सारी समझ आती है, तो मतलब कि आपको इंग्लिश आती है। इट मीन्स यू नो द लैंग्वेज। अगर मैं कुछ बोलूँ आपको समझ आइए? नथिंग। क्यों? क्योंकि ये आपने लैंग्वेज भी पढ़ी ना मैंने पढ़ी है। मैंने एक जस्ट अटरेंस क्रिएट की है, एक आवाज़ क्रिएट की है, ना मुझे मतलब पता है ना आपको। ठीक है, अगर आपने चाइनीज़ पढ़ी हो तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाती है, लेकिन आप स्पोकन में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आपने स्पीकिंग पावर कैसे इंक्रीज करनी? हाउ यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश? हमारा भी इनिशियल ये हम जब स्टार्ट था मुझे याद नहीं है, लेकिन होगा। व्हेन आई वाज गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश,
जब मैंने स्टार्ट किया था तो इट शुड बी लाइक डैट कि मुझे भी अटकता होऊंगा, मैं भी प्रॉब्लम होती होगी, या मैं भी फियरफुल होऊंगा, मुझे भी फियर होगा कि somebody will take out the mistake when I'm going to speak in English. But overcome your fear. This is the biggest fear that you have in your minds. इसको ओवरकम करें. ये फियर है इस टाइम पे आपका सबसे ज़्यादा. ओवरकम करने के लिए क्या है कि आपको डर है ना कि कोई गलती यार निकालने दो. गलती से इंसान सीखता है. अगर आप एक बार गलती आपकी कोई निकालेगा, आप नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं करोगे. और आप जब उसको प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश बोलोगे, तो उस अपने फियर को ओवरकम करोगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जाएगा. फिर आप निडर हो जाओगे इंग्लिश बोलने के लिए. आपका वो मोरल और आपका कॉन्फिडेंस और करेज इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि आप डरोगे नहीं किसी के सामने भी इंग्लिश बोलने से. ट्राई टू ओवरकम दिस फियर. अब वो कहते हैं टाइम नियर जा रहा था. मुझे ये था कि मैं अपने पेरेंट्स को क्या शक्ल दिखाऊंगा जाके, कि मैं अपने एक फियर को ओवरकम करने गया था लेकिन मैं जंप ही नहीं कर पाया. सो टाइम नियर आया, उसने जंप करने का प्लान किया और बहुत करीब है. द इंस्ट्रक्टर प्लेस्ड हिज आर्म ऑन माई शोल्डर टू reassure me that I could do it. I nodded and swallowed. My mouth felt dry as I felt the fear rising within me. I began mumbling affirmations again, and then it was my turn. Jump! I heard the command and hesitated. Jump! Shouted the instructor. I thought no further and took the plunge, exactly as I had been drilled. Brave! I heard my instructor's voice in my ear. I fell swiftly and then looked up just in time to see the parachute canopy open above me. Then I looked up. अब क्या हुआ? कहते इंस्ट्रक्टर ने मेरे शोल्डर पे हाथ रख के मुझे तसल्ली दी कि कुछ भी नहीं होगा, जंप करो. फिर उसने इतनी देर के अंदर, मैं अभी सोच ही रहा था, मेरा मुंह ड्राई हो गया था नर्वस होके. मैंने क्या किया, कहता ये सोच ही रहा था, तो उसने मुझे कहा जंप. फिर उसने शाउट किया जंप, तो मैंने कुछ भी सोचे बगैर जंप कर दिया. आईज़ मेरी क्लोज थी और मैं हवा के अंदर झूल रहा था. फिर मैंने एकदम से ऊपर अपने देखा तो मुझे पैराशूट नज़र आया जो खुला हुआ था. फिर मैंने देखा नीचे. As I looked at the beautiful hillside below me, tears sprang into my eyes, tears of pure joy. I had won. As I floated, I remembered all my drills again and began to control my gliding. When I landed, my comrades were upon my laughing and shouting. I could see that they were as happy as I was, that I had overcome the greatest enemy of man, fear. अब क्या हुआ, कहते जैसे ही मैं आंखें खोली, नीचे देखा इतनी ब्यूटीफुल हिल साइड, तो मेरी आंखों के अंदर आंसू आ गए. और मुझे वो सारी बातें याद आ रही थी जो मैंने ट्रेनिंग ली थी अपने ग्लाइडर को, अपने पैराशूट को कंट्रोल करने की. जैसे ही मैंने लैंड किया तो मेरे जो जितने साथी थे पैराग्लाइडिंग के, वो सारों ने मुझे हग किया, मेरे लिए खुश थे जितना मैं खुश था. और मैंने खुद को कहा कि मैं जीत गया हूँ यार, मैं जीत गया हूँ. मैंने जो उस चीज़ को ओवरकम किया है जो ग्रेटेस्ट एनिमी है इंसान की, और वो है फियर, जो इंसान का दुश्मन है. लेटर माई इंस्ट्रक्टर लैंडेड एंड गिव मी अ लार्ज ग्रिन. आई न्यू यू कुड डू इट, he said, and he slapped my back, and I mumbled by thanks, and then we ran to the truck. When do we do it, sir? When we do it again, sir? I asked the instructor. His reply was drowned in the shouting of my comrades. जैसे ही मैंने उसको, कहते हम ट्रक के अंदर बैठे, तो मैंने उसको पूछा सर दोबारा कब करेंगे. अब क्योंकि मैंने फियर को ओवरकम कर लिया था, मुझे डर नहीं था, जितनी बार मर्जी कर लूँ मैं. तो सारे मेरे प्लटून मेरे जो साथी थे, उन सब ने शाउट किया, खुश हुए कि इसने दोबारा किया. सो डैट इज़ ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह we will
read the descriptive essays in the next, inshallah, in the next lecture. So read these chapters, essays, stories, and try to understand them, that how to write a good essay. उसकी चीज़ें देखें, उसके आप काउंट करें कि कितने ज़्यादा पैराग्राफ्स हैं. मैक्सिमम 5 ही होते हैं. 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लिखे हुए हैं, मतलब 5 आप 3 to 5 लिख सकते हैं. That is all for today. Thank you so much.